Now this is the question number 8 of your exercise 6.5. The question number 8 says the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find the perimeter. In this question, the diagonals of a rhombus is given to you, and you have to find out the perimeter of that rhombus. So for solving this question, you should know basic properties of the rhombus. जो rhombus की basic properties है that you should know. First of all, what is rhombus? Rhombus is your what quadrilateral in which all sides are of equal length. सभी sides क्या होती है? Equal length की होती है. First property is that. And what is the other property? जो diagonals होते हैं rhombus के, वो क्या करते हैं बेटा? They are perpendicular bisector of each other. What does the perpendicular bisector means? First of all, the diagonals will meet at a 90 degree. जो diagonals होंगे वो किस में मिलेंगे बेटा? 90 degree में मिलेंगे. And what does the bisector means? Bisector means they will be dividing the diagonal into two equal parts. जैसे अगर बात करते हैं जो ये, अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूँ ए बी सी डी, दिस इज द rhombus, and AB will be equals to BC, which is equals to CD, and same as DA. And if you come to the second property, that is the diagonal bisect are the perpendicular bisector of each other, then this AC and BD will be intersecting at this point O and making how much degree angle? That is 90 degree angle, right angle. And what does the bisector means? The bisector means this AC has been divided into two equal parts. This AO and OC will be equal. Same way DO and this OB will be what? Equal. ठीक है. Now in this question what is given to you? You have been given AC equals to how much? 16. AC आपको 16 सेंटीमीटर given है, और आपको जो BD है, जो नेक्स्ट डायगोनल है, that is given to you how much? 30 सेंटीमीटर. This is given to you what? 30 सेंटीमीटर. Now and you have been asked perimeter. और अगर हम बात करते हैं किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. पेरीमीटर क्या होता है बेटा? किसी भी क्लोज फिगर का टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. एंड यू नो दैट व्हाट, जो रोम्बस है, रोम्बस हैज ऑल साइड्स व्हाट? इक्वल. हर साइड क्या होती है? हर एक साइड क्या होती है? इक्वल होती है. दैट मीन्स इट हैज फोर साइड है, तो फोर साइड का सम इक्वल साइड, दैट मीन 4 मल्टीप्लाई ए, वेयर ए इज योर व्हाट? ये ए क्या आपकी साइड है, दिस इज योर साइड. 4 मल्टीप्लाई साइड गिव्स यू व्हाट? योर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. ठीक है. द स्पेलिंग इज RHO. दिस इज RHO. ओके. सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई ए, दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड ओनली. सो फॉर फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर यू शुड नो साइड, एंड यू हैव बीन गिवन व्हाट? डायगोनल्स. आपको क्या गिवन है? डायगोनल्स गिवन है. So what we will do? We will use the property that is the diagonals are the perpendicular bisector of each other. उस property का use करके हम क्या करेंगे? We'll find out the side. Then by using the side, we will find out the rhombus perimeter of the rhombus. So AC आपको given है कितना? 16 सेंटीमीटर. And AC has been divided into two equal parts. तो AC two equal parts में कैसे divide होगा? AC का क्या निकाल देंगे? हाफ. तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 2 1 2 2 8. तो कितने टाइम्स कट रहा है? 8 टाइम्स. तो कितने इसमें पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 8 पार्ट इधर, 8 पार्ट इधर. सेम वे अगर हम बात करते हैं BD के, जो BD है दैट हैज बीन आल्सो डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो 30 को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 2 1 2 2 15 से कितना होता है? 13. तो कितना आया? 15 सेंटीमीटर डिवाइड हो गया. मतलब 15 इधर भी और 15 इधर भी. ओके, दिस इज डन. नाउ आप देखो इन दिस रोम्बस देयर आर हाउ मच? 4 राइट एंगल्स. 4 राइट एंगल्स हैं. कौन कौन से? AOB, BOC, COD and AOD. These all are what? The 4 right angles which has been formed by the diagonals, intersecting diagonals. तो आप किसी भी एक ट्राइंगल को ले लेते हैं. तो मैं लेता हूं इसमें COB को लेते हैं. मैंने ले लिया COB. ठीक है. This is C, this is O and this is B. And CO has been given to you how much? 8 सेंटीमीटर. CO आपको कितना दिया? 8 सेंटीमीटर किया होगा. ठीक है. CO has been given to you how much? This is your 8 सेंटीमीटर. CO आपको 8 सेंटीमीटर दिया. And OB is being given to you how much? 15. OB आपको 15 फाइंड. एंड जो CB है, दिस CB इज बेसिकली व्हाट? दिस इज योर साइड. ये क्या आपके साइड है, और हमने साइड को क्या मान के चलना है? A. ठीक है. हमें ये फाइंड आउट करना है साइड. व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट साइड? बिकॉज वी नीड अ पेरीमीटर ऑफ rhombus, and the perimeter of rhombus is what? 4 multiply side. So that we are going to use. We are finding out what? This side. And how we can find out that? Since this COB is your what? Right angle triangle. ये क्या है? Right angle triangle है. Right angle कहाँ पे बना है बेटा? O पे. तो दिस O के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी योर व्हाट? हाइपोटेनस. तो वो कौन सी है? आपकी CB. तो वी विल राइट इन ट्राइंगल COB
एंगल O इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, एंगल O क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम this CB which is the hypotenuse CB square will be equals to what CO square plus OB square, and CB square we have to find out the CB, तो CB square को CO कितना बेटा 8 का स्क्वायर प्लस OB is how much 15, this means 15 का स्क्वायर, तो CB square will be equals to what 8 का स्क्वायर is how much 8 multiply 8 that is 64 and 15 का स्क्वायर means 15 multiply 15 वो निकल कर आएगा 225। now what you will do, you will add these two, इन दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है, तो जब हम ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग 289 एज अ CB स्क्वायर क्या निकल कर आएगा 289। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड CB, हमें क्या चाहिए CB चाहिए। CB विल बी इक्वल टू, जब स्क्वायर हटा तो उधर क्या चलेगा स्क्वायर रूट, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 289, हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रेक दिस 289 को क्या करना होगा ब्रेक करना होगा, और ये ब्रेक होगा कैसे, ये ब्रेक होगा बाई बट दिस विल बी द स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर ऑफ 17 का स्क्वायर कैसे हो 17 मल्टीप्लाई 17, जब आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग वट 289, तो हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो दिस स्क्वायर रूट जब रिमूव होगा जो नंबर फॉर्म कर रहा होता है वही वन नंबर बाहर आता है, तो दिस 17 विल कम आउट, तो CB इज इक्वल टू वट 17, सिंस दिस ऑल वर इन सेंटीमीटर, तो CB क्या निकल कर आ गया आपका 17 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। सो हमने यहाँ पे CB को फाइंड आउट कर दिया 17 सेंटीमीटर, बट हमें CB फाइंड आउट नहीं करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, आई एम इरेजिंग दिस साइड, ठीक है इस साइड को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, वी नो दैट व्हाट पेरीमीटर, अभी हमने लिखा था पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इट इज बेसिकली योर व्हाट 4 मल्टीप्लाई साइड, और अभी जो निकला हमारा CB, ये क्या आपकी बेसिकली दिस इज योर व्हाट साइड, ये क्या आपकी साइड है, तो अभी हमने साइड कितनी निकाली 14, तो दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई 17 which is equals to what 4 into 17 is your 68, तो पेरीमीटर वी आर गेटिंग हाउ मच 68 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या आपका 68 सेंटीमीटर है। ओके, सो विद दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्वायर ऑफ नंबर्स अप टू 20 तक, आपको एक स्क्वायर के नंबर्स के स्क्वायर को भेज रहा हूँ, सो दैट आपको अगर कोई नंबर अगर मिलता है जैसे 289 144 196 225, तो आप सीधे उसको ब्रेक कर सकते हो 15 मल्टीप्लाई 15 17 मल्टीप्लाई 17 बेस्ड ऑन ऑफ नंबर ऑफ विच दिस नंबर इज अ स्क्वायर। सो इस वीडियो के साथ यू विल गेट दैट अ टेबल इन द टेबुलर फॉर्म, सो यू हैव टू नोट इट डाउन और लर्न, उसको भी नोट करने के बाद आप उसको लर्न करना पड़ेगा, सो दैट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ वी कैन ब्रेक दिस 289 को किस टू नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ विद द exercise 6.5 and also the chapter triangle and its properties. On Monday you will get some extra question based on this exercise chapter, that is triangle and properties, and after 2 days, that is on Wednesday, you will have your test on this chapter triangle and its properties. So with this we finish off with the today's class. That's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.